हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ अ केमिकल स्टॉक एंड हाउ इट इज़ वैल्यूड, whether it is undervalued, overvalued, fairly valued, and what are the prospects and what are the opportunities of growth। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग पहले स्क्रीनर खोल लेंगे एंड के लिए just type screener on the Google and you will get the screener, and the name of the stock that I'm going to discuss is Fine Organics. So this is the stock that we are going to discuss today. अभी इसका वैल्यूएशन एनालिसिस हम लोग करेंगे, and before that, just to give a brief about the company, Fine Organics is actually an oleochemicals and additives manufacturer है, जिसका यूज़ होते हैं फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, coatings and other industries में, and it is one of the largest players in India as well as in the globe. So these are the details that you can find about the company, and it is one of the leading chemical companies, in short, about the oleochemicals manufacturers in India. India में तो largest है ही as mentioned and is one of the top global players. तो इसका उस तरफ से देखेंगे तो बहुत अच्छा एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, कंसिस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज लाइक कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स है, पेंटिंग सेगमेंट में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, पिडलाइट हो गया, बजर पेंट्स हो गया, एक्सेट्रा। एंड इसका और भी डिटेल्स है, लाइक डोमेस्टिक से इनका रेवेन्यू 39% आता है, हालांकि पहले 45% आता था। देन एक्सपोर्ट्स में से 61% आ रहा है इन FY22, जब वो 55%, जबकि पहले 55% आ रहा है। So the company is actually moving towards more of exports, as we can understand from here, and it is a oleochemicals based chemical companies, chemical manufacturer hai. So now, after this brief introduction about the company, we will directly deep diving into its valuation analysis. उससे पहले these are some of the key metrics जो मैं फॉलो करता हूँ एक कंपनी एनालिसिस के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, जिसका पी हो गया ये 22.2, उसका इंडस्ट्री पी है 25.2, तो इंडस्ट्री से इट इज़ लोअर। बट अगर इंडस्ट्री से लो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ हाईली अंडर वैल्यूड या हाईली ओवर वैल्यूड, समथिंग लाइक दैट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेटिव वैल्यूएशन एज वेल कि कैसा ये परफॉर्म किया है इसका स्टॉक। And these are some of the fundamental key matrices like ROC, ROE. You can check it. Promoter holding 75% here, so that's a nice thing. And debt is also very low, 0.02 hai. And the return has been quite negligible, that is almost absolutely flat over 1 year. नाउ अभी जो हम लोग करने वाले हैं इज एक्चुअली द वैल्यूएशन एनालिसिस, एंड इसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा लाइक हाउ टू गो अबाउट द वैल्यूएशन एनालिसिस। बट उससे पहले लेट मी जस्ट शो यू अ लिटिल बिट अबाउट द कंपनी का growth, the growth story of the company. So as you can see, the sales of the company has increased from 660 to 3000. That's almost 5 times in what, 1 2 3 4 5 6 7 7 years में 5x हो गया revenues, and operating profit भी 146 से 800 times हो गया है, so it's almost 6 times. And the profit after tax, sorry, the profit, net profit after tax, that's the PAT, 76 से 618, that's almost more than 8 times, I would say। ठीक है, क्लोज टू 8 टाइम्स। तो यहाँ पे 8 टाइम्स ऐसा हो गया है। नाउ जो हमको देखना है कि व्हाट हैज़ बीन द CAGR ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, एंड ROE इज वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स। तो इफ़ यू सी हियर, 10 साल का तो है नहीं, कंपनी 10 साल तक एग्जिस्टेंस में था नहीं, सो आई थिंक दे started reporting the numbers from 2016 onwards. So if you see, 5 years में the company has reported 29% CAGR of sales growth, which is absolutely amazing. 3 years में 43 है, and TTM मतलब last year or trailing 12 months, which is nothing but last year 2023, FY 2023. Okay, so if you see, इंटरेस्टिंगली आपको एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे दिखेगा कि जैसे जैसे कंपनी नज़दीक आ रहा है टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, फ्रॉम द पास्ट, द रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स हैज़ इंक्रीज। दैट मीन्स 5 साल पहले का अगर लोगे तो आप 29% दिखोगे, 3 साल का लोगे 43%। दैट मीन्स फ्रॉम 2000, आई थिंक कितना, 18 से, हाँ, 18 से जो ग्रोथ था वो 30 था, बट 2020 से जो ग्रोथ है वो 43% है।
which means the growth has accelerated. And similarly अगर लास्ट ईयर टी टी एम पे देखोगे आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, वो और भी ज़्यादा था, दैट इज 61%, विच मीन्स द ग्रोथ हैज़ एक्सेलेटेड मच मोर. लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट. अभी प्रॉफिट जो है देखिए 5 साल में 45% है. तो एक कंपैरिजन हम करेंगे सेल्स ग्रोथ से. 29 है, यहाँ पे 45 है, सो दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग मच फास्टर देन सेल्स ग्रोथ, विच इज, इसका मतलब है कि कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा है. 3 years में 55 है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 138. सेम ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड हियर, दैट मीन्स यहाँ पे 5 years जितना था उससे एक्सेलरेट किया है लास्ट 3 years में, उससे एक्सेलरेट किया है लास्ट 1 year ट्रेलिंग 12 मंथ्स में. सो दैट मीन्स दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है. इन 3 years स्टॉक प्राइस 32% CAGR दिया है, बट ओनली सिंस द 1 year it is almost remained flat, that's -1%. This is the interesting part, and now we are going to deep dive into this. हालांकि just to make sure that you remain comfortable fundamentally on this stock, 49% इसका ROE रहा है. ठीक है. Now we need to focus on this part, and यहाँ पे हम लोगों ने understand कर लिया है कि the company is showing really accelerated growth in recent times, but इसका return even after the accelerated growth in both profit and sales is -1%. Again, just to give you a little bit more comfort, एक बार देख लेते हैं कि cash from operations कितना रहा है. If you see from 45 in 2017, ये ग्रो करके 485 हो गया है अंडर द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, सो इवन इफ आई टेक फ्रॉम सपोज 5 years, ये ऑलमोस्ट 8x हो गया है, राइट. एंड 3 years में डबल से भी ज़्यादा हो गया है. सो दैट इज़ रियली अ वेरी गुड साइन. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 67 है, तो इसका अगर इफ़ आई सी इट फ्रॉम इन दिस पर्सपेक्टिव, इसका रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट एंड मे बी चैनल इन्वेंट्री स्टॉकिंग. तो इसके लिए यहाँ पे कैश फ्लो काफ़ी कम हो गया होगा, बट इफ़ यू सी द प्रॉफिट इज बिन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली हाई. ओके, सो दिस गिव्स अस कंफर्ट कि हाँ कैश फ्लो भी क्वाइट कंसिस्टेंट है इस कंपनी में. नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द वैल्यूएशन. अभी ऑल्दो द कंपनी इज शोइंग वेरी गुड ग्रोथ, क्या प्राइस इतना ग्रो कर रहा है? लेट्स सी. लेट्स टेक 10 years व्यू. इसका 2018 तक ही है, तो इसका मतलब देयर इज नो डेटा बिफोर दैट. आई थिंक द कंपनी गॉट लिस्टेड समवेयर इन दिस टाइम ओनली. यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही लीनियर काइंड ऑफ ग्रोथ दिया है, एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सेलेरेटेड ग्रोथ था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड रीजंस, कि कोविड के बाद जो बूम आया था स्टॉक मार्केट में इज बेस्ड ऑन दैट. एंड यहाँ से फ्रॉम सितंबर 2022 द स्टॉक हैज़ फॉलन फ्रॉम 7,000 लेवल्स, 7,000 या उससे भी अगर मैं थोड़ा सा देख लूँ ये करके क्लोज करके, सो इट्स समवेयर अराउंड 7,000 लेवल्स से द स्टॉक हैज़ कम डाउन टू 4,500 के लेवल्स में. राइट. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, द थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज कि 30% फॉल कर गया स्टॉक ऑलमोस्ट इन आई वुड से अ ईयर और सो, एक साल से भी कम टाइम पे. नाउ इसका पीई क्या है? इसका पीई इफ यू कैन सी इन द 10 years, लेट्स एनालाइज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. यहाँ पे पी 4-5 थे, फिर वहाँ पे आपका थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है, यहाँ पे 30 पी है, एंड देन अगेन द पी हैज़ बीन staying somewhere around 40ish. यहाँ पे पी इज समथिंग अराउंड 35ish. ओके, एंड यहाँ पे आपका पी कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है. सो इफ यू सी हियर द पी हैज़ बीन इन 2019 24 22 के आसपास, 22-24 के आसपास था. वहाँ से पी क्या हुआ, एक्सपैंड कर गया रैपिडली टिल 81 या 80 भी मैं अगर पकड़ लूँ, 4x पी एक्सपेंशन हुआ है इन जस्ट 3 years फ्रॉम February 19 टू April 2022. वहाँ से अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्रैश किया है पी टिल 2023 में पी क्रैश करके 22 हो गया. सो दैट मीन्स द पी इज नाउ स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट वेर इट वॉज इन FY19 या February 19. तो इसका मतलब यही है कि पी के स्टैंड पॉइंट से द कंपनी is at that level of earnings, yeah, at that level of sales
का रेवेन्यू इंडिकेट कर रहा है कि 3 साल पहले जो था पी, हम वही वैल्यूएशन दे रहे हैं. Is it worth it? Even though the company has shown tremendous growth in the past 3 years, 5 years, even in the last year. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है कि मैं अगर इसका पी को कंपेयर करूँ मीडियन पी के साथ, दैट्स 42.5. यहाँ पे जो डैश लाइन आप दिख रहे हो, दैट इज अ मीडियन पी. ओके. एंड यहाँ पे पी हैज कम ऑलमोस्ट, और पी हैज बिकम ऑलमोस्ट लेस देन हाफ ऑफ द मीडियन पी. सो एज यू कैन सी, ये जो वैल्यूएशन गैप है, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जाके इन्वेस्ट कर लीजिए. एंड जस्ट टू बी क्लियर, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर educational purpose and entertainment purpose the video is being made. So please do your diligence on stock analysis and consult your investment advisor accordingly for your investment portfolio. तो इसके लिए हम लोग सिर्फ क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, कैसे रेंज में है. यू कैन सी अ डीप गैप between the median P of this company over the past 5 to 7 years. What I see, I think it's a 5 years का history है ये, and इसका जो current P है. And more importantly, इसका अगर मैं दूसरा EV by EBITDA ratio देखूँ, दिस इज ऑल्सो एट अ 5 year ऑलमोस्ट लो ही मैं बोल सकता हूँ, 14.9. और यहाँ पे लो था 13. सो इट्स वेरी क्लोज टू ऑल टाइम लो. इट्स 15. ईवी इज ऑलमोस्ट 15, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 2019 मार्च का ही है. ठीक है. सो दैट मीन्स द मार्केट इज इन गिविंग इट अ मल्टीपल, जो 2019 का मल्टीपल था, मार्केट भी यही मल्टीपल दे रहा है कंपनी को. और हालांकि द कंपनी हैज शोन फिनोमिनल ग्रोथ. So that means only one thing, that company is not come into clear notice at all. मार्केट कैप टू सेल्स भी अगर देख लेते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट मीडियन से 20-30% नीचे ट्रेड कर रहा है. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स. नाउ एक और चीज़ हम देखेंगे बाय गोइंग इनटू ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन में जाके यू कैन सर्च फॉर फाइन ऑर्गेनिक्स. फाइन ऑर्गेनिक्स सर्च करने के बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डेटा पॉइंट. पीजी रेशियो. पीजी रेशियो जो है, आप अगर देखोगे जनरली एक कंपनी का पीजी रेशियो एक से कम अगर होता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, या इट इज़ इंडिकेटिंग दैट द ग्रोथ इज गोइंग टू बी, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी is going to be more than the PE ratio. That means PEG रेशियो का फॉर्मूला इज पी रेशियो बाई ग्रोथ. ओके. तो अगर सपोज ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली पी रेशियो से ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब यही है कि पी रेशियो अगर सपोज 22 से ज़्यादा हो गया, 22% से ज़्यादा हो गया, पीजी रेशियो 1 से कम हो जाएगा. और यहाँ पे अगर सपोज पीजी रेशियो 0.2 है तो इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ क्योंकि ज़्यादा है, दैट इज़ वाई द पीजी हैज़ बीन टर्निंग लेस. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि पीजी क्योंकि 0.2 है, द कंपनी इज बीन प्रोजेक्टिंग हाउ मच ग्रोथ. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 0.2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं, नहीं सॉरी, इसमें अगर सपोज 0.2 का मैं ग्रोथ ले लेता हूँ. ओके. या फिर सपोज मैं पकड़ लेता हूँ कि इसमें 22.2 का पी रेशियो है. ओके. एंड ग्रोथ यहाँ पे कितना है, सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. व्हाट इज द ग्रोथ, सपोज यहाँ यहाँ से व्हाट इज द टीटीएम ग्रोथ दैट वी सॉ, इट वाज 138, राइट. तो 138 में अगर यहाँ पे डाल देता हूँ 138, so how much is going to be the P ratio, divided by 0.13, that's almost 0.2. ओके. अभी ये 1 साल का P रेशियो है. अभी सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सॉरी अगर आप यहाँ पे P रेशियो डालेंगे एंड यहाँ पे आप डालेंगे ग्रोथ रेट ऑफ एनुअल रिजल्ट्स. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, या फिर यहाँ से अगर आप देखोगे कि सी ए जी आर ऑफ 3 years का कितना है, 55. अगर सी ए जी आर है तो यहाँ पे अगर 55 डालोगे, 3 साल का जो पैड ग्रोथ है, हाउ मच इज इट कमिंग,
इसको डिवाइड कर दीजिए, आएगा 0.4। एंड यहाँ पे सिमिलरली 22.2 का रेशियो को अगर आप डिवाइड करोगे 5 ईयर्स के CAGR से 45%, तो इसमें कितना आ रहा है, पी रेशियो डिवाइड बाई ग्रोथ 0.49। तो ये हो गया आपका 1 ईयर, ये हो गया आपका 3 ईयर, ये हो गया आपका 5 ईयर। इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, सॉरी, इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, जैसे जैसे हम लोग क्लोजर आ रहे हैं वैसे वैसे इसका रेशियो और कम होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इसका ग्रोथ क्योंकि ज़्यादा है, दैट इज़ एग्जैक्टली वाई द PG रेशियो इज फॉलिंग एज वी आर कमिंग क्लोजर, एंड इन शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी हैज ग्रोथ मच मच बेटर ग्रोथ। सो नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूसिव पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं या फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टॉक प्राइस का फंक्शन क्या है। स्टॉक प्राइस अ फंक्शन ऑफ पी रेशियो एंड ईपीएस, दोनों का फंक्शन है, पी रेशियो का भी है, ईपीएस का भी है। तो ईपीएस तो हमने देख लिया कि इट हैज शोन फिनोमिनल ग्रोथ, बट द पी रेशियो, इसका क्या लॉजिक है या इसका क्या फंक्शनिंग है, एक बार हम लोग फाइन ऑर्गेनिक्स का ट्रेंड लाइन से देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर बेटर। यहाँ पे सपोज मैं अगर पी रेशियो डाल देता हूँ एंड we want to analyze it for the whole period of 5 years, यहाँ पे ग्रीन लाइन पी रेशियो दिखा रहा है एंड द पिंक लाइन इज शोइंग द स्टॉक प्राइस। यहाँ पे क्लियरली देखिए जो पी रेशियो है एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम 2022 से 80 तक, जैसा कि मैंने स्क्रीनर पे दिखाया था। एंड यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो भी 750-800 पे चला गया, समवेयर अराउंड 4000 का। Okay, so that means there was an expansion of 4x, more than 4x in the stock price, but the P ratio expanded only 4। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जैसे देखोगे आप 750-800 रुपये से 4000 चला गया, 4500 चला गया था, तो 4x वहाँ से तो पी का मिल गया, और बाकी का जो मिला है ऑलमोस्ट 0.5-0.7x वो अर्निंग से आया है। नाउ यहाँ से अगर आप क्लियरली मतलब बहुत माइन्यूटली देखोगे, द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप एंड फॉलन डाउन, बट द पी हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलन डाउन। ओके, सो इसका मतलब यही है कि एट दिस पी द कंपनी इज बीइंग प्राइस्ड बाय द मार्केट एट द 2019 लेवल्स या 2018 लेवल्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ से बिकॉज द कंपनी इज शोइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ, देयर इज ओनली स्कोप ऑफ पी एक्सपेंशन, अदर देन ऑल्सो कि यहाँ पे ईपीएस का ग्रोथ तो हो ही रहा है। सो यहाँ पे ईपीएस का जितना भी लेवरेज है वो तो मिल ही जाएगा, सॉरी जितना ग्रोथ है वो तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ जो लेवरेज मिलेगा वो है पी एक्सपेंशन का, जो कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि 20 से एक्सपैंड होकर 80 तक गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। एंड यहाँ से जब भी वो 20 है, अगर इवन दो इफ इट इज़ नॉट गोइंग सपोज 4 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स भी आता है तो देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज लेवरेज अगर स्टॉक यहाँ से टर्न आउट करके मूव करता है तो। So what we understand in this video is that the prospects of the P expansion of this stock of Fine Organics, given that it has fallen down to almost a 5-year low PE, even though the EPS is growing at 50-40 levels, 50%, 40% levels. So I hope you like this video, and I hope I was able to give you a good valuation analysis on this part of the PE expansion and EPS expansion. So if you have any questions, please do write down in the comment section. And yes, we will see you guys in the next video. Thanks.